Commissioner, Provident Fund. Right now, he is posted as Regional Commissioner in Chandigarh. Okay, and he has come here just to address the queries that you people are having related to your preparation for civil service examination. And I would request Mr. Puri just to just to tell you something related to how to overcome the stress and tension that comes to your mind while you are preparing for competitive examinations. Okay, so right now I request Siddharth sir just to felicitate Mr. Puneet Kumar. And I am handing over this microphone to the student community. If you have any queries, you can also ask questions to Mr. Puneet. Hello everybody, am I audible to all of you? First of all, welcome to you all. And this is my first visit to Bhubaneswar. In fact, it's my first visit to Odisha. First, about me, if you ask, I came to Delhi in 2004, started my preparation in 2008. There was, I did graduation from Delhi University from mathematics honors. I was a kind of bright student in first year. In second year, I was less bright student. And in final year, I thoroughly failed in all the papers. And it's true. So, I passed my graduation in 4 years. And my percentage in graduation was 47%, not even 50%, so that I could have given the examination of law paper of Delhi University. From there I started my journey of preparation. Then I thought that I did some grave mistakes during my stay in Delhi. I was lost in the joy and the lights of Delhi. Then I started my preparation. Why I am telling you this? Because I may not be the best example around, but I am a good example. That if I can do it, then you all must be better than me. I think nobody of you must have failed in all the papers in your graduation or engineering and whatever courses you are pursuing. Thing is just about of self-realization. That I realized, I prepared, I did it. So, if I have done it, then be sure and confident that you all can definitely do it and achieve it. And whatever I am telling you, it's true. Okay. So, I have been here just when I was discussing with sir. Sir was, we do have some frequent discussion about everything. So sir was telling that these days students have become very impulsive and they are too much engrossed in studies and books. They are too much stressed out. There's too much of tension during preparation. It's normal. First of all, you all have to realize that stress is natural and normal. It's not like that, like I'm interacting with you all. I am also feeling stressed now. Okay, to interact with so many students, not an easy task. One mind, there are so many, 150, 200 minds are here. So it's normal and natural. What normal and natural is that people tend not to accept that they are stressed. First thing is that, remember me, you have to accept that you are stressed, you are in tension. First, if you will not accept that you are in stress, then everything is over. First, when you will accept that, okay, I am stressed, I am in tension, then only cure can start. Cure can only start when you will accept that I have this problem. Then you think over the problem, then you try to find the solutions. What generally students see during my preparation days also, I used to feel, and my colleagues who were preparing, I am not stressed. It's just because I have overstudied. It's just because of exertion.
is just because of bad health, but this is vice versa. Your okay, your health is affected because of stress. आपकी तबीयत खराब जो होती है ना प्रिपरेशन के दौरान, वो स्ट्रेस से हो रही है। ये नहीं कि तबीयत खराब होने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो यू हैव टू लुक इनसाइड कि आपको स्ट्रेस है, वो कहाँ है, कैसे, क्यों है। अब व्हेन यू एक्सेप्ट इट, जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ओके मुझे स्ट्रेस है, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन टेंशन, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। Solution lies with you and only you. Nobody is there, just like you have come here for civil service preparation. It's your decision. So उसी तरह से आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस और टेंशन है और जो भी मानसिक तनाव है, उसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं और उसको सॉल्व भी आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए सबसे पहले चीज़, फर्स्ट थिंग जो है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा। क्या रियलाइजेशन होनी चाहिए? गलती कैसे नहीं होगी? गलती भगवान से, इंसान से नहीं होगी। नहीं, दैट सिविल सर्विस इज नॉट एन ऑप्शन। यू आर डूइंग इट बिकॉज इट इज नेसेसरी। The moment you have this in mind that you have other options as well, okay, so you have already diverted your attention, you have diversified your mind. Just like necessary क्या है? उठना necessary है, खाना necessary है, सांस लेना necessary है। ये आपका क्या है? आपका biological part of life है। तो make civil service your part of life. आप में से किसी ने आप इंटरस्टेलर मूवी देखी है? किसने देखी है? कुछ लोगों ने देखी है, ठीक है। उस मूवी में एक डायलॉग बोलता है, जो एक्टर होता है किसी प्रॉब्लम में फंसा होता है, वो डायलॉग बोलता है कि जब उसका कलीग बोल रहा होता है कि ये तुमसे होगा कि नहीं होगा, तो वो बोलता है ये मुझसे मत पूछो मुझसे होगा कि नहीं होगा, दिस इज नेसेसरी, ये मुझे करना ही है। तो जब ये चीज़ माइंड में आ जाती है ना कि मुझे करना ही है, तो फिर ये सारे ऑप्शंस होगा कि नहीं होगा, पहले क्या किया था, खत्म हो जाता है। तब आप प्रोसेस में घुस जाते हैं। यू बिकम प्रोसेस ओरिएंटेड, यू फोकस ऑन योर प्रोसेस, यू फोकस ऑन योर मेथड्स, एंड व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ, व्हेन यू आर ऑन योर राइट मेथड्स, तो सक्सेस इज इवेंचुअल। हु कैन स्टॉप यू? कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ भी ये हुआ, मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया, 47% मार्क्स आए, और जब मैं सिविल सर्विस के इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे पास का जो बंदा बैठा हुआ था, लाइक इट्स अ राउंड चेयर एंड 5-6 स्टूडेंट्स सिट, आई वॉज लुकिंग एट हिज डिग्री, द फर्स्ट डिग्री वॉज फ्रॉम SRCC, तो स्ट्रेस इंक्रीज्ड। सेकेंड डिग्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे लगा मैं BA पास, 3rd डिवीजन, एंड ही इज हैविंग सच हाई डिग्रीज। आई वॉज इन टू मच स्ट्रेस। नॉर्मल है, हो गई कि भाई इंटरव्यू देना है, मेरा कॉम्पिटिटर इतना हाईली क्वालिफाइड है। इमीडिएटली आई रश टू द वॉशरूम, आई लुक्ड इन द मिरर एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि एटलीस्ट आई हैव रीच्ड हेयर एंड आई विल मैनेज टू पास आउट हेयर ऑल्सो। फिर मैं आया, देन आई गेट द इंटरव्यू एंड रिजल्ट एज फॉलोड। हाँ, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, बिकॉज अगर होता तो मेरे बैच में पता होता ना। तो इट्स एक्सेप्ट करो, नेसेसरी है ये, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे लिए नेसेसरी है, मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रेस ऐसे नहीं होता था, बिकॉज मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका था। और जब प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज़ के, तो आपका इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्ट्रेस को याद करने की चीज़ तो है नहीं, अच्छा स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना। स्ट्रेस क्या अपने आप आ जाती है, टेंशन अपने आप आ जाता है।
तो लेकिन आप जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हो, आज उठना है, सुबह पढ़ना है, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, शाम में रिवीजन करना है, रात में सोना, सुबह उठना, वही प्रोसेस करना है, तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान ही नहीं रहता। चलो थोड़ा और इसको इलॉबरेट करते हैं। पहला चीज़ क्या है, मैंने बोला कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप टेंशन में हैं, यू आर इन स्ट्रेस। तो उसका सल्यूशन क्या है? मतलब सल्यूशन आप ही के पास है। हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान एक इकोसिस्टम में जीता है। आप एक इकोसिस्टम का पार्ट है, ये एक इकोसिस्टम है। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोसिस्टम को बस मैनेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व है यहीं पे। कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ होगी नहीं, कोई एंजाइटी पिल्स नहीं खानी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं होगा। इंटरनल इकोसिस्टम, योर साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजिकल सिस्टम। नो, क्या होता है उसमें? फियर ऑफ द अननोन। एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं। ये क्या है? ये फियर ऑफ द अननोन है, पता नहीं है इनमें कुछ भी। तो ये फियर ऑफ अननोन है ना, ये तुम्हारे माइंड पे एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? जनरली आप लोग ने कोई एग्जाम दिया है, कोई किसी भी टाइप का, एसएससी, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, तो एग्जाम से जैसे जैसे नजदीक आता होगा, 2-3-4 दिन पहले क्या होता है, यार ये पढ़ा ये है कि नहीं, जो नहीं पढ़ा उस पर ध्यान जाएगा, अरे वो नहीं पढ़ा वो आ जाएगा। तो ये फियर ऑफ द अननोन क्या है? ये आपके माइंड पे प्रेशर ही क्रिएट कर रहा है। इट इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। ये क्या है? साइकोलॉजिकल है, ये प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल प्रेशर, विच इज मोर लाइक सोशल प्रेशर। फ्रेंड्स, फैमिलीज, योर कलीग्स, इवन अननोन पीपल, लाइक जिससे आप बुक्स खरीदते हो, रिश्तेदार, जिस ऑटो से आते हो, जहां पेट्रोल पंप में तेल भराते हो, वो सब भी आपका एक्सटर्नल इकोसिस्टम है। अब ऑटो वाले से ही झगड़ा हो गया, जिस दिन एग्जाम देने जा रहे सुबह से ऑटो वाले से झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? आपका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। इट विल इफेक्ट इन योर एग्जाम, इट विल इफेक्ट और नॉट। तो अगर ऑटो वाले ने 10 रुपए मांगे आपसे एग्जाम के दिन, तो आपको क्या करना? चुपचाप 10 रुपए निकाल के दे देना है। नहीं, झगड़ा नहीं करना है उस दिन, कि उसका 10 रुपया आपका बहुत नुकसान करने वाला है। ठीक है? तो एक्सटर्नल इकोसिस्टम, फैमिली, शादी का प्रेशर है, घर में मम्मी पापा कुछ करेगा नहीं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल प्रेशर है। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग एंग्जाइटी, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग योर टेंशन एंड प्रेशर ऑन यू। इजंट इट सो? करता है कि नहीं करता है? तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, और जो इंटरनल, जो फियर ऑफ द नोन है, ये एक मैट्रिक्स इवेंट बना करके आपके सर पे एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल देता है। और उस प्रेशर के बोझ में ना, आपने जो इतनी सारी पढ़ाई की होती है वो बहुत नीचे दब जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ मैसिव सेटबैक इन द एग्जामिनेशन हॉल। इट्स ट्रू फॉर एवरीवन। तो आपको समझना है कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, फैमिली है, और जो इंटरनल प्रेशर है, जो आपका खुद आपका माइंड है, इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग जानते होंगे। अब इसे इंटरनल प्रेशर है। आप लोग में से कितने लोग धार्मिक हैं, मतलब कि यू फॉलो रिलीजन एंड यू लव डूइंग पूजा? कितने लोगों ने कल शिवरात्रि वगैरह की थी? कुछ लोग धार्मिक हैं। देखो, धर्म जो है ना, धर्म बहुत अच्छी चीज है। रिलीजन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सी हाउ पॉलिटिशियन दे यूज इट, तो यू ऑल्सो यूज इट फॉर योर सेल्फ। रिलीजन इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू रिलीव स्ट्रेस। हाउ? बिकम अ रिलीजियस पर्सन। जिस भी भगवान की पूजा करते हो तो दिल से भगवान की पूजा करो, क्योंकि जहां भगवान आ जाता है ध्यान इधर उधर तो जाता नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। कितना भी बड़ा पापी होगा वो
किसी भी मंदिर में जाएगा तो वो अच्छे मन से ही जाता है कि नहीं जाता है? आता है ना, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही जाता है। तो आप जब धर्म से जुड़ते हो, आप बहुत अच्छा पूजा पाठ और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हो, अगरबत्ती वगैरह जला रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड धर्म की तरफ झुकेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा बन जाओ, वो भी एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन उस पर हम अभी नहीं आते हैं। अभी सिविल सर्विस के बिजनेस पे ही रहते हैं हम लोग। लेकिन आप उस चीज़ पे इसलिए जाओ ताकि आपका माइंड जो है ना साइकोलॉजिकली शांत रहे, एंड इट रियली अफेक्ट्स। मैं डेली सुबह 5 बजे उठता था। उठने के बाद आई यूज्ड टू फ्रेशन अप, सुबह नहाने के बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसमें जो 7 बार पाठ करे कोई, छोटी बंदी महासुख होई, तो मैं 7 बार पाठ करता था। उसके बाद पाठ करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था, एंड आई यूज्ड टू रियली फील वेरी रिलैक्स्ड एक्चुअली। And thing is that even during my day of examination, I used to follow the process. Never change the process. एक दिन के प्रोसेस चेंज करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। एग्जाम डे तक फॉलो करो आप इस चीज को। जो रूटीन आज सेट कर लिया है वो लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक होना चाहिए। नेवर ट्राई टू मेक सम न्यू चेंजेस इन इट। तो ये चीज आप ट्राई करके देखो। मार्क्स ने भी रीजन के बारे में कितनी अच्छी चीजें कहेंगे, ठीक है, यू ट्राई टू फॉलो इट। अब दूसरी चीज है, बहुत लोग जानते होंगे इसे, मेडिटेशन। अब मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ कि मेडिटेशन क्या है, एंड यू फॉलो सदगुरु और यू फॉलो दिस और दैट। मैं सिंपल स्टूडेंट लाइफ को आपको, यू हैव टू स्टडी एज वेल। डोंट गो इन डीप इन दैट मेडिटेशन टेक्निक्स, ये कुछ नहीं है। रूम बंद करके शांति से बैठ जाओ, क्लोज योर आइज, सिट साइलेंटली। अगर कोई अच्छा 1-2 मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, उसका 10 मिनट आंख बंद करके आप जाप करो। दैट विल एनर्जाइज योर माइंड, बिकॉज द फ्यूल ऑफ माइंड इज ऑक्सीजन। द मोर ऑक्सीजनेटेड योर माइंड इज, यू विल फील मोर फ्रेश, and the more fresh your mind is, there will be more strength in your mind, and the more strength in your mind is, these weaknesses like stress and strain and anxiety will never touch you. This is the only reason I am telling you. I am not कि भैया आप किसी मेडिटेशन के कोर्स को ज्वाइन कर लो, उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अब वो तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डोंट स्टडी वॉट एवर यू आर स्टडीइंग ना, डोंट स्टडी विथ लॉट ऑफ अटैचमेंट, स्टडी इट विथ डिटैचमेंट। बुक इज नॉट योर फ्रेंड, बुक विल नॉट लीड यू एनीवेयर, ओके। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, दैट्स इट। आप में से आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ है? अच्छा, बैंकिंग क्या अच्छा लगता है? बैंकिंग में रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है। तो रीजनिंग में सारी चीज़ें, मतलब कि ज़्यादा आप रीजनिंग प्रैक्टिस करती हैं? जैसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से कितना कर लेते हो आप? और ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? तो सिर्फ रीजनिंग करते करते रहने से आप बैंकिंग निकाल लोगे? लेकिन आपको इनको रीजनिंग बहुत पसंद है, तो क्या है, रीजनिंग से अटैचमेंट हो चुका है, तो शी विल स्पेंड मोर टाइम इन रीजनिंग। तो शी इवेंचुअली कैन बिकम अ फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, बट शी कैन नॉट बिकम अ बैंकर। सपोज आपका किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद है, किसी को ज्योग्राफी बहुत पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है। मुझे सोशियोलॉजी पसंद नहीं है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मुझे इतना ही पता है सोशियोलॉजी के बारे में, जितने आज भी अगर मैं एग्जाम दूं तो मैं 500 में 250 प्लस तो ले आऊंगा, दैट इज सफिशिएंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री लाइन। अब बाउंड्री लाइन बनाओगे माउंट एवरेस्ट,
तो वहां पर तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। तो भाई स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन क्यों नहीं होगा? यूपीएससी कह रहा है तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही नहीं, तुम्हें माउंट किलिमंजारो चढ़ना है। तो चढ़ना है 4000 फीट, तो 8000 फीट की क्या पढ़ाई क्यों करनी, बताओ? नहीं, इज देयर एनी रीजन? कोई बताओ, कोई लॉजिक है? और ये तभी होता है ना, इट हैपेंस when you are too much attached to a particular topic or subject or book. The more you are attached, the more you are into it, you will want to study more and more likely you want to lecture on it more, and you will find that many students are coming to you to learn from you, that he or she knows this subject so well, and you will feel empowered and very knowledgeable person. And in fact, imagining to be a civil servant, you will imagine yourself to be a faculty of so and so subject. Okay? तो क्या होगा इससे? It will also create pressure in your mind. भाई जितना एक दायरा एक सिलेबस का है, आपको बुक नहीं समझना है, आपको सिलेबस समझना है कि आपके एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करनी है। क्रिएट बाउंड्रीज, उस बाउंड्री के बियॉन्ड जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम है, आप चाहे बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो, मैंने 6-7 बार एसएससी मैंने भी निकाला है। एसएससी ले लो, आप बैंकिंग ले लो, आप उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ले लो, यूपीएससी ले लो, ये कहीं नहीं है कहता है कि आपको एक बुक के पीछे भागते जाना, पढ़ते जाना है, करते जाना है ना? नो, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देखो थर्ड थिंग शायद और किस में, ये तुम लगा मैंने पहली बार बताया हुआ आपको। ऑलवेज बी डिटैच्ड पीपल आर इमोशनली न्यूट्रल। द मोर इमोशनली न्यूट्रल आर, द मोर इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर। इमोशन इज समथिंग इन प्रिपरेशंस। Emotion is something when you don't use your heart, you use your mind, but people think that you're using your heart. Okay? So, next thing which is also very important in every aspect of your life, in your career, even as you are selected, is discipline. From childhood, from school days, in your college, everybody has told you that discipline is very important. Even I am telling you it is very important. During your preparation days. You know why it is important? You wake up in the morning, you go to the coaching class, then you come, you take rest, then you do your studies, and you sleep by 11 o'clock. Every day your average studies is like 4 to 5 hours. Okay. Now you are following this schedule for entire year. तो ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन है। तो जब आप इस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो ना, तो एग्जाम क्या हो कि आपका माइंड भी जो है ना वो ऐसे ही ट्रेंड हो चुका है। वो अपने आप, आपका बॉडी क्लॉक सेट है, अपने आप उठोगे सुबह, आपका भाई सुबह उठ के अभी तो यहाँ जाना, अभी इसके बाद पढ़ना, अभी ये करना, वो करना है। तो एग्जाम जैसे नजदीक भी आएगा ना, तो नो मैटर आपके ऊपर स्ट्रेस कितना हावी हो रहा है, लेकिन वो आपका डिसिप्लिन ने आपके माइंड को इतना ट्रेन कर दिया है कि यू विल फॉलो द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस में ही रहोगे। द मोर इनटू यू इन द प्रोसेस, द मोर इनटू यू इन द फ्लो ऑफ द रिवर, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये सब आपके माइंड पे कभी हावी नहीं होगी। एक मूवी है ब्रिज ओवर रिवर कोआई, देखी किसी ने? ब्रिज ओवर रिवर कोआई नहीं देखी है? ये मैनेजमेंट स्कूल्स में ये मूवी बहुत दिखाई जाती है। अगर टाइम मिले तो कभी ये मूवी ज़रूर देखना। इस मूवी का छोटा सा जिस्ट मैं बताता हूँ क्या रहता है कि ब्रिटिश आर्मी रहती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन है। इसमें ये जो आर्मी है ये इसको जैपनीज पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक आइलैंड पे बंद कर देते हैं, और जो आर्मी का जनरल है उसको ये बोलते हैं कि यू सल्यूट मी। तो आर्मी जनरल सेज दैट no matter I am captured, I am a POW, prisoner of war, but still I am a general. You have to treat me like one. और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे मतलब कि 10-10 दिन खाना नहीं देते हैं, उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कमरा खोलता है, जैसे वो बाहर निकलता है, भले वो 20 दिन से नहीं खाया है, वो स्ट्रेट खड़ा होता है,
बिल्कुल आर्मी की तरह चलता है, डिसिप्लिन को वो फॉलो करता है। तो उसके जितने भी सैनिक होते हैं उसे देखते हैं, बोलता है कि इतने प्रताड़ना सहने के बाद भी मेरा जनरल जो है कि इतना डिसिप्लिन है, ये फॉलो करता है, तो उनको उसको देख के उनको मोटिवेशन आता है। एंड दिस इज अ वंडरफुल मूवी, वन शुड ऑलवेज वॉच। तो डिसिप्लिन रहो आप लोग, बहुत ज़रूरी है तैयारी के लिए। और लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अराउंड यू। जैसे अभी ऑटो वाली कहानी में बता रहा था कि भाई एग्जाम के दिन जाना है, अब सुबह ऑटो वाला झगड़ा हो, बोल रहा है कि नहीं, अब बोलोगे यहाँ से तो 5 रुपये लगते हैं, बोले नहीं मैं तो 10 रुपये लूंगा, अब तुम मुझसे झगड़ गए। तो इट हैज़ क्रिएट रिपल्स इन योर माइंड, आपका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। आप एग्जाम से पहले अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आप हर उस ऐसे व्यक्ति से संबंध तोड़ दो जिससे आपको लगता है कि भाई ये नेगेटिव बात करता है, जस्ट स्ट्रिप इट ऑफ। मूवीज भी देखो, ऐसी मूवीज देखो जिसमें पॉजिटिव चीजें दिखाई जा रही हैं। डोंट गो फॉर वेरी वायलेंट मूवीज एंड वॉर मूवीज, गो फॉर गुड काइंड ऑफ लव स्टोरीज एंड पॉजिटिव मूवीज, मोटिवेशनल मूवीज, जिससे उससे क्या होगा, जो आप देखोगे आपका माइंड भी तो वैसे ही ट्रेंड होगा ना। सिट विथ फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। तो जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करोगे तो उतनी ज्यादा नेगेटिविटी हटेगी। द मोर इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी, लेस इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी। तो ये जो आपका इकोसिस्टम है ना, उस इकोसिस्टम को आपको पूरा पॉजिटिव बनाना है। ये चीज़ें जो मैंने थोड़ी सी बताई हैं आपको, यू हैव टू स्टडी विद डिटैचमेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, मेडिटेशन, बी रिलीजियस, यूज करो रिलीजन को, बी रिलीजियस। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप क्लास पढ़ो तो बैठ के तपस्या करो, ठीक है, सिंपल थिंग। तो ये चीज़ें करने से ना आपका जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, ये हैम्पर नहीं होता है। यू विल हैव इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। जस्ट मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, द मोमेंट यू आर प्रिपेयरिंग। फिर जब आप सक्सेसफुल होते हो तो देन देर इज अ डिफरेंट स्टोरी। Then you will really understand the meaning of stress. You are working in field, you know that certain work cannot be completed, but minister wants the report. Now video conferencing has been arranged with the minister, okay. Now you have to explain him in a polite manner so that he doesn't feel bad, and you have to explain him that whatever you are saying is correct and this is not practically viable. If he understand, so you are in Chandigarh. If he doesn't understand, so next day you will be in Chennai. Okay, so this is stress. So higher you go, you will feel less is the oxygen, the more is the stress. It's like that. And lastly, if you cannot handle stress now, you cannot handle success also. Okay, if you want to enjoy success, you enjoy this part of life as well. If you all want to ask me anything, any questions, anybody, या कुछ समझ में नहीं आया, you understand all understand Hindi ना? So how many of you are preparing for PCS and UPSC? Okay. Okay, and all of your banking and SSC, and after that you will prepare for UPSC. It's also a good strategy. This is also a good strategy to reduce stress. So you have something in hand, then you can vouch for higher things. It's good. So any questions? Huh. Good afternoon, sir. In UPSC preparation or state PCS preparation, so many hurdles and so many distractions are there. So my question is to you: how to stay away and how to overcome
distractions. See, I told you. Sir, basically in 20s, so many distractions are there in students' See, life. So how to stay preparation is not just about distraction. Human being by nature are not just distracted, they are distrustful as well. Yes, sir. Okay. You take a bunch of human beings and transfer them to a new planet. Okay. They will destroy that planet completely. Human beings by nature are destructive as well. You agree or not? You see, in the lust for money, they would destroy anything, they would create anything. No green zone, nothing, they will cut all the trees. It is happening or not? So, like the destruction is natural, na? So, distraction is also natural. Okay, it is natural. But how to overcome? Yes, you have to simply make your preparation part of your life. Can you live without eating food? No, sir. No. Can you live without inhaling oxygen? How you can live without preparation? That I mean, this is necessary. This is not optional. This is part of your life. This is your life. Distraction will be there where you want to do something. You are something. You don't study like you are studying in school or college. This is not study. This is your life. You have to focus just not on what you are studying. You have to focus on yourself, that whatever you are studying is your energy, is your aura. And this is the reflection of you in future. Though if you don't study, you should feel like, I have not eaten like anything today. So there will be no distraction. This is not like school study. If everybody will study, everybody will pass. Nobody will study, nobody will pass. Here everybody will study, but few will pass. Only those few who think that this was not just preparation, this was my part of life. And that will make you a good administrator also, in any wake of life. Even if clear SSC, within 10 years you join a very good position. So there also you have to take administrative decisions. So you will take good decisions when you think that the policy which you are looking at is part of your life. Then only you can make good policies, na? If I am not considering a policy which is good to me, then how it will be good to the larger masses of people? This is how the policies are made. Now you have to be attached. This is your life. You have to attach to it, and then there will be no distraction. Just practice it. और कुछ पूछना है? Any questions? हाँ बोलो. हाँ. हाँ. I have cracked 19 examinations. नहीं, I am coming to you. See, I told you that I scored 47%. The only option was government service. Okay. So in 2011 there was called CSAT pattern has come new. 2011. So everybody was preparing for CSAT. So I thought that it's better that to go live for the CSAT examination. So I used to appear in the examination. So that I will just get to know about it in a better way. But goal was always to be a civil servant only in first instance. It was not like that. See, if your strategy also not bad, I'm telling you. I have many my batchmates who were first cleared SSC or were into some banking. They were there. It is a good cushion, provided you land in a good department. Okay. Suppose if you have landed in a department where there is already lots of work,
So then there is only option you have to leave your job. Because UPSC always is demanding, you have to prepare a lot, you have to write a lot, you have to practice a lot. And second thing, your boss should be good. He should give you leave. He should give you leave for preparation for months, 2 months. Then, but generally it happens, but sometimes it even does not happen. Boss is not always good. Hmm. See, what I told you, na, कि civil service was my necessity. I was not thinking of anything. Why to think? I was not thinking that I can do this, I can do that. That I will think when I am not successful. Why I will think now? No, I don't agree. See, you think that okay, I may not clear UPSC, then what I will do? So I have to keep other things along with me readily prepared. Huh. हाँ. See, if your final goal is UPSC, okay, and you are giving SSC exam or any other exam, keeping that in mind, so that is also part of the process. Okay, yes, that is part of the process. Because if you are preparing for SSC, of course, their entire your CSAT pattern is there. Of course, it is there. Yes, of course. Final. I told you, I gave so many exams, but my purpose was not to clear that exam. My purpose was to check me whether I'm finally prepared for my final goal or not. That was there, and that should be there. I have given Rajasthan PCS exam, I have given Chhattisgarh PCS exam, I have given UP PCS exam. So I was writing the exams, I was doing good, but thing was that I was keeping myself in practice, so that when I entered my UPSC exam, written exam, I should do well, because mains is very demanding. Okay, any more questions? So all said and done? फीलिंग बिट रिलैक्स्ड. तो जो भी बोला इसे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो. अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग तक अगर आऊं तो फिर मिलते हैं, उसमें फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है ना. ओके सर, ओके. Sir. Thank you, Puneet, for coming here and addressing the students. So it reminds me the timing of 2011-12 in our while we are studying under my guidance. Okay, and during the time of examination also you are not able to sleep properly. You are calling me time and again, sir, I am not able to sleep. What can I do? And I told you, Puneet, you are not able to sleep in exam. A few days before exam, that is 10 or 15 days before exam, that means you are in the right path of preparation. While you are in the right path of preparation, you should not be worried for it, because a person should be worried for his weakness. But this is your strength. So why you worry for your strength? And obviously, in the meantime, you have acquired lots of practical wisdom related to stress management, and also you shared with my students.
So thank you a lot for coming to Bani IAS and addressing the students. Before winding off this session, just I want to tell something to the students seated here. You are asking, sir, how to prepare and how not to be distracted from preparation and how to become successful in exam. I want to tell you one thing that is a Hindi poem. It has been written in that Hindi poem. जन्म मरण का खेल अनूठा, जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसको खुद से प्यार नहीं है. It means, if I translate it into Odia, जन्म और मृत्युर खेल सारा पृथ्वी रे चालिछि. जीतिथिबा बंचिथिबा लोक जीति नाही कि मरि जाइथिबा लोक संसार को हारि कि मरि जाय. तेणु जन्म और मृत्यु नेचुरल प्रोसेस स्वाभाविक प्रक्रिया, किंतु जीवन में गोटे लक्ष्य अछि. तेणु तमर जहाँ लक्ष्य अछि, आईएएस पाइबा, ओएस पाइबा, रेलवे पाइबा, बैंकिंग पाइबा बा एसएससी एग्जाम क्लियर करिबा, से लक्ष्यटा को आखि आगे रख. किंतु से लक्ष्य पथरे पहुंचिया पाई जो रास्ता अछि, प्रत्येक दिन पाठ पढ़िबा ता लागि सेटा तम लागि रास्ता. तेणु तमे जदी गोटे रास्ता रे जाउछ लक्ष्य रे पहुंचिया पाई, प्रत्येक दिन तमे से रास्ता चलीबा लागि एन्जॉय करूछ, तम अजणात रे केते बडे तमे लक्ष्य पथरे पहुंची जीव जानि परिबनी. सेति पय म कहूची, बट पुनीत वाज टेलिंग दैट यू स्टडी the moment your mind permit you, but you enjoy your process of preparation. जति तमे प्रत्येक दिन जहाँ पढुछ ताकू एन्जॉय करूछ. जमा लक्ष्य मोर आईएएस न पाइले मु एन्जॉय करिबिनी, ओएस न पाइले मु एन्जॉय करिबिनी, बैंकिंग का रेलवे न पाइले मु एन्जॉय करिबिनी, ए कथा चिंता न करी कि तमे चिंता कर मु काली जहाँ जानिथिली आजि आउ किछि जिंस पढिछि, अधिका जिंस जानिछि, ए अधिका जानिबा भीतर ही मु आजि एन्जॉय करिबि. दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल. काली थारु मु अधिका जानिछि आजि, दैट्स द रीजन आई हैव टू सेलिब्रेट माय एक्सपेंशन ऑफ माय बेस ऑफ नॉलेज. ए कथा जदि चिंता करि करि तमे प्रत्येक दिन जानु चली थिबो, तम अजणात रे केते बडे तमे आईएएस हे जिवो, ओएस हे जिवो, बा बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एग्जाम रे सक्सेसफुल हे जिवो. सेति पई मोर कहया कथा सब बळे निज मन को दृढ़ कर, ऑटोमेटिकली सक्सेस तम पछरे गोडेइब. तमे सक्सेस पछरे गोडेइबार कोनसी आवश्यकता नाही. आपण मान को अटल बिहारी वाजपेयी कर गोटे कविता कहि कि शेष करूची आज ए सेशन. अटल जी कहछंती तांको गोटे कविता रे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. इसलिए तो भगवान कृष्ण ने शस्त्रों से सच रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी. जेतबे युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन कोन हिचंती निजर बंधु बांधव को देखि युद्ध करिया पे मेंटली प्रिपेयर्ड हो नांती, सेतबे से कोन होचंती निरुत्साहित होचंती, वितस्पृह होचंती, होचंती नाही मु एमितिया युद्ध लढिबा उचित नहे, कारण ए युद्ध को जीतिले मो जीवन में मो बहुत बंधु को हरै. तेणु ए भलिया युद्ध मु लढिबिनी. सेतबे कृष्ण कहचंती नाही, दिस इज द बैटल फील्ड, यू हैव जॉइंट इन द बैटल फील्ड. मु तुमको डाकी नथली युद्ध भूमि को, तमे निजे डिसाइड करथलो युद्ध भूमि को आसिया पाई. तेणु युद्ध भूमि रे जतबे अछ लढिबा होछि क्षत्रिय धर्म. ठीक सेमिति तमे वर्षे हो बा दिवर्ष तले हो जतबे डिसाइड कल मु आईएएस बा ओएस बा रेलवे बा बैंकिंग बा एसएससी लगी प्रिपेयर करबी, तुमको सेतबे केही कहि नथिले जे तमे प्रिपेयर कर. जेहेतु तमे डिसिजन नै छ निजे, तेणु केमिति सक्सेसफुल हबो सेति पई तुमको प्रैक्टिकल रास्ता खोजिया पई पड़िबो. आ से प्रैक्टिकल रास्ता होछि प्रत्येक दिन रो प्रिपरेशन को एन्जॉय कर. इफ यू एन्जॉय each and every day of your preparation, automatically success will chase after you. So at the end, I want to conclude by saying that try to enjoy each and every steps of your journey, because each and every steps of your journey is as enjoyable as the destination of journey itself. Thank you. Thank you for listening.